Hey guys, how are you doing? My name is Misbah and I'd like to welcome you all to a new course that's going to be on Flask, right? In this course we'll talk about Flask, the web framework, like what it is exactly, how it works, and how even we can use it. Okay? So we'll talk about all of that. The thing is we'll start off with talking about the course basically. Okay? So, what is the expectation that you can have out of this course? We'll talk about that. Then we'll talk about the outcome. Like, what is the expected outcome that I'm expecting from you? That what you should be able to do. And उसके बाद we'll also talk a little bit about this feedback thing also. Okay. Guys, about the expectation part of this course. So the way we are going to go with this course is that I'm not making any assumption कि आपको फ्लास्क आता है या अगर आता है तो कितना ज़्यादा आता होगा या कम. नो assumptions whatsoever. सो हम ना इस कोर्स को फ्रॉम स्क्रैच पढ़ने वाले हैं. Everything from like about Flask we'll try to cover, or at least the most useful things about Flask, like how to create a web page using Flask and what are the other features of this like amazing framework. And finally we'll work ourselves up to how to deploy a machine learning model using Flask. ठीक है, because ये सब हम देखने वाले हैं. And the thing is we will see all of these things from absolute scratch. All right, and the only thing that is expected from your end is कि आपको Python आना चाहिए. And by Python I don't mean कि आपको high level भी आना, मतलब high end आना चाहिए. What I mean is basic to intermediate level अगर आपको आता है, you are good to go with this course. Okay, so that is the simple thing. Because also इस course में ना we will like confine ourselves to talk about Flask itself, कि how to get things done using Flask, right? अब क्योंकि guys क्या होता है ना, when we talk about web pages and the web, so like there are so many things involved. Like आपका HTML होता है, front end, back end, like CSS, JavaScript, bootstrap sorry, and etc. Yes, इस course में we won't be talking as deeply about the front end tools. ठीक है? It's just about how to get things done using Flask. Alright? Guys, on that note, I hope we are clear with the expectation of the course. ठीक है? And then, so what is the outcome? Right? तो आपने ये course ले लिया है. So now what is the outcome over here? कि by the end, I hope कि you will have learned Flask to a good extent, कि आप ये सीख चुके होंगे how you can use Flask बड़े आराम से, how to make web applications, web pages, and also how to serve machine learning models using Flask without any difficulty. Alright, so that will be the outcome. Because about the feedback, by now I am sure आप लोग को पता होगा, right? We also connected it for some other course on AWS SageMaker. तो I am sure you know how it works, right? तो हर एक क्लास के बाद we had this feedback form जहाँ पे आपने feedback share किया था, and it was helpful for me also. I got to learn what you expect from my end as well, right? तो guys, the same way अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे होंगे तो I'm sure you will have the entire course available to you, because आपको feedback forms भी मिल जाएंगे. तो बस make sure करना कि आप ये feedback form ज़रूर से share करना guys, right? Fill the form, बस आपको 2 मिनट लगेंगे maximum, right? 3 से 4 questions होते हैं. Let me know कैसे लगा आपको and what else you would like me to do, right? ताकि I can deliver better content for you. ठीक है? So guys, that was it about the expectation, outcome and the feedback of this course, right? Okay, so having said that, let's talk about इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं आज की क्लास में, right? तो इस क्लास में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. तो we'll start by talking about the working of a web app. एक एप्लीकेशन है, but what goes on behind the scenes? How does it work? क्योंकि अगर हम वेब एप्स बनाने वाले हैं तो वी शुड क्वाइट नो दिस, राइट? तो वो देखेंगे हम. उसके बाद वील टॉक अबाउट द मेन थिंग इटसेल्फ, फ्लास्क. ठीक है, व्हाट इज फ्लास्क, कैसे काम करता है एंड ऑल ऑफ दैट वो देखेंगे.
देन विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द प्री रेक्विजिट्स, मतलब आगे कोर्स को सीखने के लिए आज की क्लास में देर आर अ फ्यू टॉपिक्स जो हमें पता होने चाहिए, वो देख लेंगे। बेसिकली व्हाट आर दोस टॉपिक्स? बेसिक टॉपिक्स अबाउट द वेब, वेब के बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, तो वो देखेंगे हम। उसके बाद गाइज विल गेट ऑन टू दी हैंड्स ऑन डेमो, तो हम पाइथन एंड फ्लास्क यूज करके विल मेक आवर ओन वेरी फर्स्ट वेब एप्लीकेशन। ठीक है, दिस इज द प्लान फॉर दिस क्लास। ऑलराइट, so with that being said, let's move on to our very first section, that is the working of web application. Guys, I hope आपके सामने आप ये देख पा रहे होंगे this diagram। अब इस पे यहाँ पे क्या दिख रखा है? You can see there is a web application, right? तो ये देखना, एक वेब एप्लीकेशन है, एक सर्वर है, and from the web app to the server we are sending something called as a request, and you can see from a server to back to the web app there is something called a response। तो इस सिंपल टर्म्स में वेब एप्लीकेशंस के पीछे क्या हो रहा है ना, आपका जो एप्लीकेशन होता है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू सम सर्वर। ओके, every web application is always connected to one server। ठीक है, एंड वेब एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, वी आर द यूजर्स, तो हम कुछ रिक्वेस्ट मतलब हम टाइप करके एंटर मारते हैं, हम कुछ क्लिक करते हैं इन द एप्लीकेशन, करेक्ट? तो बिहाइंड द सीन्स समथिंग कॉल्ड एज अ रिक्वेस्ट इज जनरेटेड एंड सेंट टू दैट सर्वर। ठीक है, उसी सर्वर से हमारे पास, हमारे एप्लीकेशन के पास एक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स वी गेट द आउटपुट ऑन आवर स्क्रीन, राइट? तो वेब ऐप में हम कुछ करते हैं, पीछे रिक्वेस्ट जाता है टू सम सर्वर, सर्वर से वापस आता है एक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के ऊपर वी गेट द आउटपुट ऑन आवर स्क्रीन्स। ठीक है, so guys, on a very high level this is how web applications work, right? Now let's try to break it down। ठीक है, guys, web app तो है but उसको बनाना कैसे है? How do we make web apps? Well, we make use of frameworks। guys, web app को बनाने के लिए थोड़े web frameworks होते हैं, right? Like आपने देखा होगा we have something called Django, Flask, Streamlit, all of these are frameworks that we can use। ठीक है, so this is the first crucial thing that we need, a web framework। ठीक है, तो in our case our framework is going to be Flask in this course। ठीक है, now ऐप हमने बना लिया using some framework, but उसको बनाना क्यों है? Why to make a web app in the very first place? गाइस, वेब एप्लीकेशंस बनते क्यों है? फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मान लो हमें कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ डेटा हमें चाहिए, वी नीड सम इंफॉर्मेशन, राइट? तो फॉर ईच स्पेसिफिक पर्पस वी हैव वेब एप्लीकेशंस, राइट? गाइस, आप सोच के देखना, मान लो यू वेक अप वन डे एंड यू वांट सम इंफॉर्मेशन अबाउट मूवीज, तो वेयर डू यू गो? You go to something called IMDb, right? आपने यहाँ, you can see from here, guys, देखो IMDb, right? So what is this? This is a popular web page or a website for movies का information, right? And let's say you want information about IPL. We have a website iplT20.com। Guys, basically अगर आपको कुछ information चाहिए, that's why we make use of web apps। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो हमने एक टर्म लिखा है, ये एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है? विद whom और विद व्हाट इज दिस एक्सचेंज टेकिंग प्लेस, राइट? बस ये जो एक्सचेंज होता है ना डेटा का, इट हैपेंस विद द सर्वर। लेट मी टेक यू बैक टू दिस डायग्राम। आप देख सकते हो
रिक्वेस्ट जा रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? तो फ्रॉम an application we exchange information with this server, ठीक है? अब what is a server you might ask? के simple terms में a server is nothing but a computer, that's it. It is just a computer system. What is a server again? It is simply a computer, that's it guys, ठीक है? तो how does it work? guys मान लो ये एक सर्वर है, ठीक है? सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं गाइस, ठीक है? लेट्स कॉल इट ऐप 1, लेट्स कॉल इट ऐप 2, let's call it app 3. So basically we have all these applications, right? What happens is each application is connected to some server, ठीक है? अब ये सर्वर का क्या काम होता है? Its only job is to give information to these applications, right? It is just to give info to these applications, that's it. यहाँ पे info दे रहा है, यहाँ पे भी info दे रहा है, that's it, ठीक है? Guys, basically what is this server? It is a computer system that gives or shares information with web applications, ठीक है? That is what a server is. Okay, अब हमने क्या देखा? We use a web framework to make an application. It is connected to a server. Information exchange हो रहा है, but वो होता कैसा है? We know that it happens, but how does it happen? Right? as अब ये देखना, what did we see basically? We saw that we have a client, and we have server, right? So what's happening? Guys, the client जो होता है ना, it is always asking information कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. It is always asking information. Asking. Server क्या करता है? Providing the information, right? Providing. तो क्लाइंट क्या होता है? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. इट कीप्स आस्किंग इंफॉर्मेशन एंड द सर्वर कीप्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन. तो इफ यू जस्ट थिंक अबाउट दिस गाइस, द सर्वर इज सर्विंग द क्लाइंट, राइट? द क्लाइंट रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, द सर्वर इज सर्विंग द क्लाइंट. तो ये मिला के क्या हुआ? ये मिला के आपका कुछ ये हुआ, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है? Because when we talk about making web applications, this client server architecture is the most commonly used architecture, right? Because obviously बात है, आप सोच के देखना, आप कोई ऐप यूज करते हो या आप एक वेबसाइट पे जाते हो, what do you do, right? You click on things, you type something, hit enter, and what happens? After a few moments you get the output, right? तो यहाँ पे you are the client, you and me, we are the clients, right? What is it? This is us. We are the clients. When we click anything, when we request for anything, right? And the server is that thing that gives us the information. So this is the client server architecture, ठीक है? All right, architecture clear हो गया. Now, so we have a client, we have a server, we know information exchange होता है, but what are the rules, right? Are there any rules behind it? Are there any protocols behind it, right? तो guys, in internet के ऊपर जो भी information share होता है, to make that exchange happen,
we make use of this HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। तो बेसिकली इंटरनेट के ऊपर, वेब के ऊपर अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है तो HTTP इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल, राइट। तो इन सिंपल टर्म्स व्हाट डज इट स्टेट? अब हमने ये देखा था, राइट, वेब एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट जा रहा है, एक्चुअली if we see it technically it is a HTTP request, okay, it is something called HTTP request, जो मान लो अगर हमने कुछ एप्लीकेशन में क्लिक कर दिया, बिहाइंड द सीन्स एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट होगा, जनरेट होके इट विल गो टू द कनेक्टेड सर्वर, ठीक है। अब फ्रॉम द सर्वर व्हाट विल हैपन, a HTTP response will be generated and sent back to the client, back to our application, and उस response में जो भी information होता है वही चीज़ हमको हमारी स्क्रीन में मिलता है, ठीक है। Because this is how a web application works. I hope that made sense. Let's once again recap it. तो हम क्या बोल रहे थे गाइस, अभी हमने क्या सीखा था, एक एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली एनी वेबसाइट और एनी ऐप दैट वी यूज़, ठीक है। उस ऐप में हम करते क्या है, वी आइदर क्लिक ऑन थिंग्स और वी टाइप एंड हिट एंटर, इतना ही करते हैं हम। तो बिहाइंड द सीन्स क्या होता है ना, बेस्ड ऑन आर क्लिक और आर टाइपिंग एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट होता है एंड दैट इज सेंट टू द सर्वर, ठीक है। व्हाट इज सर्वर? It is simply a system that provides information, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, based on the request एक response generate होता है, HTTP response, and that is sent back to our application, ठीक है। and उस response में जो भी content है ना, वो content हमको हमारी स्क्रीन में मिलता है, right? This is how a basic web application works, right? It follows a client server architecture and it makes use of the HTTP protocol. That's it, right? Guys, I hope that made sense how a web app works, right? तो चलो मूविंग ऑन, हमने एप्लीकेशन वो देख लिया हमने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लास्क। इज व्हाट इज फ्लास्क? हमने वो क्वेश्चन यहाँ पे आंसर किया था, when we want to make web apps we need some framework, right? Guys, so what is Flask? Basically it is a web framework basically, right? यहाँ पे देखा है, you can see here Flask is a web framework, ठीक है। What is it used for? For creating and working with web applications. So Flask is a Python framework which is used for creating and working and handling web applications, ठीक है। Now guys, Flask के major components क्या है, right? What makes it work? What makes it powerful? guys, दो concepts होते हैं, एक तो WSGI and Jinja. You can see this. Flask is based on WSGI architecture and it supports Jinja, right? So guys, what are these two things? देखते हैं, ये देखना guys. What is WSGI? ये basically एक abbreviation है. It stands for Web Server Gateway Interface, ठीक है। ये क्या है, अब देखना guys, Flask आप यूज कर रहे हो for what? To make web applications. वेब एप्लीकेशंस में क्या होता है, रिक्वेस्ट शेयर होते हैं, रिस्पॉन्स शेयर होते हैं, राइट। नाउ हाउ टू प्रोसेस दोज रिक्वेस्ट्स? ऑब्वियसली एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते होंगे साइमल्टेनियसली एट द सेम पॉइंट, राइट। तो हाउ टू प्रोसेस दोज रिक्वेस्ट्स, हाउ टू प्रोसेस दोज रिस्पॉन्सेस, राइट।
ये करने के लिए वी नीड सम गाइडलाइन, सम रोड मैप। तो उन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल करने का जो तरीका होता है, दैट तरीका इज लेड आउट बाय दिस WSGI आर्किटेक्चर। ठीक है। अब द थिंग इज, मान लो एक वेब ऐप में बहुत से रिक्वेस्ट आते हैं। ठीक है। मान लो वी हैव 10 रिक्वेस्ट राइट नाउ एट आवर एप्लीकेशन। तो WSGI आर्किटेक्चर में each of these requests will be handled sequentially, one at a time। ठीक है। एक रिक्वेस्ट आया, उसको प्रोसेस किया, उसके बाद we'll start the next request, उसको प्रोसेस करेंगे, then we'll start the next request, right? because जितने भी requests हैं we will process them one after the other। so that is what is WSGI architecture। It simply tells us how to process the requests between the client and the server। ठीक है। कैसे हैंडल कर रहे हैं? Sequentially, one after the other। ठीक है। Because that is WSGI, simply a set of rules to follow। Now secondly, what is Jinja? is यहाँ पे देखना, Jinja is a web template engine। ठीक है। वेब टेम्पलेट इंजन। अब इसका काम क्या होता है, इज ये देखना, इट इज यूज्ड टू डेवलप डायनामिक वेब पेजेस। Guys, what do we mean by dynamic? Let's talk about two examples to make you understand this। ठीक है। तो अभी मान लो guys एग्जाम्पल, हम एक वेब पेज पे जा रहे हैं, राइट? अब यूजुअली what do we know like so far, हम कोड राइट करते हैं एंड दैट शोज ऑन द वेब पेज, राइट? जो भी हम HTML कोड लिखते हैं वी सी दैट ऑन द आउटपुट, करेक्ट? गाइस, हाउ कैन आई मॉडिफाई दैट HTML कोड बेस्ड ऑन द यूजर्स रिस्पॉन्स, राइट? अभी मान लो इफ आई लॉग इन टू सम वेब पेज, तो द वेब पेज शुड शो समथिंग बेस्ड ऑन माई इनपुट। अगर मैंने कुछ इनपुट दिया उस हिसाब से वेब पेज मॉडिफाई होना चाहिए, राइट? तो बैकएंड में हाउ कैन वी मेक HTML हैंडल दैट? अगर कोई यूजर का इनपुट आ रहा है तो हाउ कैन वी हैंडल एंड यूज दैट यूजर का इनपुट एंड चेंज द कंटेंट ऑफ आवर HTML कोड डायनामिकली बेस्ड ऑन द यूजर्स इनपुट। वो ही करने के लिए वी यूज जिंजा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या था, अब मान लो आई लॉग इन टू अ वेब पेज, सो आई एक्सपेक्ट द वेब पेज टू शो मी माई इंफॉर्मेशन लाइक हाई मिसबा। ठीक है। इट विल शो सम इंफॉर्मेशन अबाउट मी एंड अगर मैंने कुछ पैरामीटर दिया देन बेस्ड ऑन दैट पैरामीटर वेब पेज का आउटलुक चेंज होना चाहिए, राइट? सो बेस्ड ऑन माई इनपुट्स प्रोवाइडेड उसका कंटेंट चेंज होना चाहिए, राइट? तो डायनामिकली चेंज होने के लिए वी मेक यूज ऑफ दिस थिंग कॉल्ड जिंजा। ठीक है। इस अगर ये डेफिनेशन क्लियर नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, आगे के क्लासेस में हम इसको एक्चुअल में कोड करेंगे, देन फॉर श्योर आपको लाइक यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इट इज यूज्ड फॉर एग्जैक्टली। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं, इट सपोर्ट्स टेम्पलेट इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल मान लेना, हम एक वेब पेज पे जा रहे हैं। ठीक है। मान लो वी हैव अ वेब पेज बेस्ड ऑन सम कंपनी। मान लो वी हैव अ कंपनी गाइस ABC। ठीक है। इट्स अ बिग कंपनी, राइट? अब इसके वेब पेज में मान लो वी हैव होम, राइट? वी हैव ऑफिसेस, एम्प्लॉयज, करियर्स, अबाउट, मतलब अ कॉमन पेजेस, राइट? फिर ऑफन टाइम्स क्या होगा ना, एंड ऑब्वियस ही बात है हर एक वेब पेज का अपना खुद का एक HTML कोड होगा, राइट? वी विल हैव रिटन सम HTML कोड, राइट, हर एक पेज के लिए। फिर ऑफन टाइम्स क्या होता है ना, इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज पेजेस जो कोड होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है। इट विल बी ऑलमोस्ट द सेम कोड, मतलब बहुत सा कोड रिपीट होगा, राइट?
तो उस रेपिटेटिवनेस को हम कैसे कम कर सकते हैं, एंड जो इतने सारे पेजेस का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. Guys, in all of this also we make use of Jinja. Guys, basically Jinja is a tool that helps us to create dynamic web pages. यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग वी कैन मॉडिफाई आवर HTML कोड ऑटोमेटिकली. ठीक है. एंड ऑल्सो जो कोड में रेपिटेटिवनेस होता है ना उसको कम करने भी वी मेक यूज ऑफ Jinja. So that is what Jinja is, right? Because these two concepts, WSGI, Jinja, these are the main components of Flask under the hood, right? Guys, I hope this made sense so far. What is Flask? It's a web framework used for creating web apps. Okay? And it supports the WSGI architecture and Jinja, right? So what is this WSGI? It is simply an architecture that states कि वेब ऐप में हमारे फ्लास्क के एप्लीकेशन में जितने भी रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं हाउ टू हैंडल दोज अंडर द हुड. तो ये क्या बोलता है, ऑल द रिक्वेस्ट्स विल बी हैंडल्ड वन एट अ टाइम सीक्वेंशियल. ठीक है. देन जो हमारे वेब पेजेस होते हैं हाउ टू मेक देम डायनामिक, यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग हाउ टू मॉडिफाई देम, फॉर दैट वी यूज Jinja. Okay, because that's about intro to Flask. Okay, so with that being said, now we'll head over to our prerequisites. ठीक है. Because what are prerequisites? ये थोड़े concepts हैं जो हम बात करेंगे and काफ़ी important concepts हैं, right? तो हम इन्हीं concepts को इन code like you know implement करने वाले हैं, right? तो only if we know the theory well can we do the practical clearly. ठीक है. Guys, we will talk about endpoints, then we'll talk about path parameters, query parameters, we'll talk about HTTP methods, ये कहाँ पे और कैसे यूज होते हैं, then we'll talk about response codes, या basically shall I say HTTP response codes, right? And then some brief talk about HTML tags, क्योंकि हम HTML का भी कोड यूज़ करने वाले हैं at some point in this course, तो it's good if we know what happens over here, right? इतना हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं. ठीक है. Just give me a minute. Right. Guys, endpoints. ठीक है. What are endpoints? तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने देखा था ना, ये देखना, वी हैव दिस वेबसाइट, राइट. चलो अभी मान लेते हैं हमारा एक वेबसाइट है. ठीक है. राइट. वेबसाइट है एंड वी हैव दिस नेविगेशन बार, राइट. मान लो यहाँ पे वी हैव होम, यहाँ पे वी हैव अबाउट, यहाँ पे वी हैव ऑफिसेस, यहाँ पे वी हैव करियर्स एंड मान लो यहाँ पे वी हैव कॉन्टैक्ट. ठीक है. टिपिकल लेआउट, राइट. इस एंड पॉइंट आप क्या सोच सकते हो, एंड पॉइंट इज एन एड्रेस ऑफ अ वेब पेज. दैट्स इट. आई रिपीट, व्हाट इज एन एंड पॉइंट? इट इज एन एड्रेस ऑफ अ वेब पेज. तो मान लो होम का जो है ना, इट विल हैव एन एड्रेस समथिंग लाइक दिस, https://www.abc.com. तो अगर हमने ये वेबसाइट एक्सेस किया तो वी विल गेट दैट होम पेज जो आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट. दिस इज वन एंड पॉइंट. ठीक है. नाउ हाउ डू वी गो टू द अबाउट सेक्शन? कुछ ऐसा होगा, https://www.abc.com/offices. ठीक है. बिकॉज आपने काफ़ी ये देखा होगा, राइट. URLs में we have these slashes and all. Guys, basically these are just addresses.
ठीक है, each address will take us to one page and that address is an endpoint. That's it. ठीक है, because why do we need these endpoints, right? इसका क्या function है, right? because मान लो आपका जो आपका जो वेबसाइट है ये कंपनीज का, will you show the entire content on the same page? मतलब the entire information कंपनी के बारे में, about the employees, the offices, the careers, everything on one page. Is it a good idea? चलो आपने दिखा भी दिया, बट जो एंड यूज़र होगा who will use your website, के सोच के देखना उनको कितना स्क्रॉल करना पड़ेगा, राइट? वी हैव ओनली वन वेब पेज, कितना स्क्रॉल करना पड़ेगा बैक एंड फोर्थ, राइट? सो गाइस इट विल बी सो इनकन्वीनियंट, राइट? वी कैन डू इट बट इट विल बी इनकन्वीनियंट एंड नॉट अ गुड प्रैक्टिस. इसीलिए गाइस जो भी हमारा कंटेंट होता है ना, वी ब्रेक इट डाउन इनटू वेरियस वेब पेजेस. ठीक है, अभी अगर हमने अबाउट पे क्लिक किया, इट विल टेक अस टू दिस एड्रेस, ये जो लाइक यू नो abc.com/about. ठीक है, अगर हमने यहाँ पे करियर्स पे क्लिक किया, इट विल टेक अस टू abc.com/careers. तो व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज आर एंड पॉइंट्स, डिफरेंट एंड पॉइंट्स और एड्रेसेस. ठीक है, दैट्स ऑल व्हाट एंड पॉइंट इज गाइस. ठीक है, आई होप दैट मेड सेंस. Basically, what is an endpoint? Simply address of web pages. That's it. ठीक है, right. As now moving on, path parameters, query parameters, right? अब ये देखते हैं कि this is really crucial concept, बहुत यूज होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखना. सो पाथ पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर रिसोर्स एट एन एंड पॉइंट. तो ये क्या बोल रहे हैं? कैसे देखो, एट एन एंड पॉइंट, अभी मान लो वी हैव एन एंड पॉइंट कॉल, ये वाला एंड पॉइंट है, मान लो https://www.abc.com/employees. ठीक है, फिर अगर हम इस एड्रेस पे जाते हैं ना /employees, तो व्हाट विल वी गेट? द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर एम्प्लॉयज़. तो बेसिकली दिस एंड पॉइंट, ये जो एम्प्लॉयज़ का जो एंड पॉइंट है, it will give us all the employees का information. But what if I want the information of a particular employee? मुझे सारे employees नहीं चाहिए, just one particular employee. How can I do that? तो अगर आपको वो करना है, then you will make use of something called as a path parameter. Path parameter मतलब पाथ में एक पैरामीटर होगा, ताकि उस पाथ में जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से आप उस पैरामीटर का एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप निकालो. व्हाट आई मीन इज, इफ दिस पाथ एम्प्लॉयज गिव्स यू ऑल द एम्प्लॉयज, एंड इफ आई वांट एन एम्प्लॉय हु हैज़ वन पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी मान लो, आई विल से दिस https wabc.com/employees/4. बिकॉज ये 4 क्या है? दिस इज एन एम्प्लॉय आईडी मान लो. दिस विल गिव मी, दिस होल एड्रेस विल गिव मी इंफॉर्मेशन ऑफ दैट वन एम्प्लॉय हुज आईडी इज 4. ठीक है, तो बेसिकली इस सारे एंड पॉइंट में जितना भी इंफॉर्मेशन है, ये एक पैरामीटर देने से आई विल गेट वन पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट एंटायर एंड पॉइंट. सो दैट इज वेयर दिस पाथ पैरामीटर्स आर यूज्ड. ठीक है, पाथ पैरामीटर्स, राइट?
एंड गाइस टू आपको और थोड़ा क्लियर करने के लिए वी हैव एन एग्जांपल. लेट्स गो टू दिस वन वेबसाइट. ये क्या है? दिस इज द वेबसाइट ऑफ फुटबॉल लीग. इट्स कॉल्ड इंग्लिश प्रीमियर लीग. ठीक है, अगर कोई फुटबॉल नहीं देखता गाइस जस्ट बेयर विद मी, बस एक एग्जांपल है. ठीक है, फन पॉइंट, मैं काफ़ी देखता हूँ फुटबॉल राइट. तो या हाँ, अब गाइस ये देखना, यहाँ पे होम दिख रहा है, फिक्सचर्स, रिजल्ट्स, आप ये सब देख सकते हो. लेट मी क्लिक ऑन फिक्सचर्स. ठीक है गाइस, ये वेबसाइट देखना premierleague.com. ठीक है गाइस, ये देखना premierleague.com/fixtures. So what are these two things? These are two different endpoints. ठीक है, this address will take you to this page and अगर आपने /fixtures लिखा, this will show you all the upcoming fixtures, all the upcoming matches. ठीक है, so these are endpoints. Okay guys, ये देखना fixtures, right? Now this is showing all the matches. What if I want one particular match? How do I do that? होम पेज में आ रहे हैं, ये एक मैच है जो आज होने वाला है ना, इसको ओपन गाइस, इसका एड्रेस देखना जरा, क्या बोल रहा है? premierleague.com/match/some number, क्या है? 93684. तो गाइस माय गेस इज 93684 is the ID of this particular match, Fulham versus Manchester City, right? Yes, no, I don't know. मैं बस उस 4 को हटा रहा हूँ, 5 डाल रहे हैं, एंटर. आज ये देखना, एक अलग ही मैच आ गया, राइट? नाउ वी हैव मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल. सो बस एक नंबर चेंज करने से, बेसिकली ये पैरामीटर चेंज करने से, फ्रॉम दैट एंटायर फिक्सचर्स का एंड पॉइंट, वी आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्टिकुलर मैच. सो दिस इज हाउ यू इंक्लूड पाथ पैरामीटर्स. ठीक है, आपके URL में स्लैश लगा के आप जो आपके पैरामीटर्स होते हैं, यू इंक्लूड देम लाइक दिस. ऑलराइट guys, I hope that made sense about path parameters, right? Okay, now query parameters. What are these things? guys देखो, अभी एक एग्जांपल लेते हैं. अब ये जो हमारा एंड पॉइंट है ना एम्प्लॉइज का, अगेन दिस विल गिव अस द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, राइट? अभी मान लो आई वॉन्ट ओनली दोज एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग एट चेन्नई लोकेशन, एग्जाम्पल. ठीक है, एम्प्लॉइज हैं काफ़ी सारे, उनके लोकेशंस हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आई वॉन्ट ओनली दोज एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग आउट ऑफ चेन्नई. हाउ कैन आई एक्सेस दैट? उसका एड्रेस कैसे दिखेगा? एंड ऑल्सो आई वॉन्ट द डिपार्टमेंट टू बी सेल्स. एम्प्लॉइज का डिपार्टमेंट सेल्स होना चाहिए एंड उनका लोकेशन चेन्नई होना चाहिए. तो गाइस, if we are ever in such a scenario, then we will make use of query parameters. आप ये रीड करना, query parameters are used for filtering the data received from an endpoint. एक endpoint पे जाने से जो भी आपको info आता है उसको आप filter करना चाहते हो. For that you will use query parameters. And what do they look like? एग्जाम्पल देखते हैं. फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉइज वी वॉन्ट दोज सेल्स पीपल वर्किंग इन चेन्नई. तो हम कुछ है, सो दैट URL विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? ये देखना http://www.abc.com/employees. मान लो एम्प्लॉइज, मान लो एग्जाम्पल EMPS. अब हम स्लैश नहीं लिखेंगे, we will remove the slash and what will we do? Question mark department equal to sales. ठीक है, डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स बोल रहे हैं एंड लोकेशन इक्वल टू चेन्नई.
Guys, basically how do we write these query parameters? आप आपके URL के बाद क्वेश्चन मार्क लगाओगे and you will write them a parameter equal to value and you will separate them by this ampersand sign. तो question mark and ampersand and in this way. So parameter equal to value, ampersand, parameter equal to value. All of this will come after the question mark. तो ये करने से आप क्या बोल रहे हो, इस एम्प्लॉइज के एंड पॉइंट से bring the info where the department is sales, location is Chennai. ठीक है गाइस, फिल्टर करने के लिए we make use of query parameters. वो इसका एक एग्जांपल देखते हैं. भी मान लो गाइस ऊपर जाना, we have this club sites, right? तो एक वेबसाइट खोलते हैं. Okay guys, why Arsenal? One fun fact, this is my actually favorite team, so I really like this team. तो बस इसका एग्जांपल बहुत देख रहे हैं हम. हाँ तो गाइस ये देखना. So we have https arsenal.com, we have question mark, ये देखना question mark है, then source equal to Premier League website and campaign equal to website and medium equal to link. is basically ये तीन पैरामीटर्स देने से आपको ये वाली वेबसाइट से ये वेबसाइट आ रहा है. तो व्हाट यू आर सेइंग इज फ्रॉम दिस एंटायर प्रीमियर लीग का वेबसाइट, मतलब जितने भी यहाँ पे टीम्स हैं ना आपके, इतने सारे टीम्स में से मुझे बस ये एक टीम का चाहिए, तो ये पैरामीटर्स आप लगा के आप निकाल सकते हो. सो दिस इज हाउ यू यूज क्वेरी पैरामीटर्स टू फिल्टर द डेटा from an endpoint. ठीक है guys, I hope these two concepts made sense, right? Moving on, अब ये क्या है guys, HTTP methods, right? ये आपने काफ़ी देखा होगा, get, post, put, delete, right? guys, तो basically in any web applications आपने ये भी देखा होगा, we have something called CRUD, right? Let me just write that down. CRUD, CRUD. What is this? किसी भी एप्लीकेशन में what do we do? हम क्या करते हैं? या तो we create data, right? या तो we retrieve data, right? Retrieve, या तो we update the data. So U for update, and या तो we delete the data, right? guys, इन चारों ऑपरेशंस को ये पॉपुलर अब्रीविएशन है CRUD, CRUD. Why? Because किसी भी वेब पेज पे या वेब ऐप में these are the most popular actions that we take. ठीक है, अब ये सारे actions हम HTTP में कैसे कर सकते हैं? Over the web, how can we communicate to the server कि हमें ये ऑपरेशन करना है? In that case, we will make use of these HTTP methods, right? तो अगर create करना है आपको, then you will use post method. If you want to retrieve, get information, then you will use this get method. अगर आपको कुछ update करना है, then you will use put, and अगर आपको कुछ delete करना है, then guess what? You will use delete method. राइट इज बेसिकली, एंड ये मेथड कहाँ पे यूज होता है? लेट मी टेक यू हियर. ये जो हमारा वेब ऐप है ना, इस रिक्वेस्ट में वी विल प्रोवाइड द मेथड दैट इज गेट या पोस्ट या पुट या डिलीट एटसेट्रा. तो व्हेन वी आर आस्किंग समथिंग, वी विल राइट अ गेट मेथड. ये बेसिकली बिहाइंड द सीन्स एक गेट मेथड जनरेट होगा. अगर हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर्वर में, जो डेटा बेस है उसमें अगर हमें कुछ ऐड करना है, देन वी विल यूज पोस्ट मेथड टू क्रिएट डेटा, टू ऐड डेटा. अगर कुछ मॉडिफाई करना है, देन वी विल यूज पुट, राइट? इस बेसिकली ये जो भी एक्शंस हैं, राइट, हम ये कहाँ पे यूज करेंगे? व्हेन वी सेंड अ रिक्वेस्ट
टू द सर्वर। तो बेसिकली हम सर्वर को बोल रहे हैं कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए या हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द क्लाइंट साइड वी विल इंक्लूड दिस HTTP मेथड। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। नाउ गाइस, व्हाट आर दीज रिस्पॉन्स कोड्स? बस हमने क्या देखा, क्लाइंट साइड से सर्वर को हम मेथड दे रहे हैं। वी आर गिविंग अ HTTP मेथड टू स्टेट व्हाट वी वांट टू डू। नाउ टेकिंग दैट मेथड, सर्वर क्या करेगा, वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजता है, राइट? बट हाउ डू वी नो दैट दैट होल ट्रांजैक्शन was successful or a failure, या what? How will we know that? So server will send a response code. So if the client is sharing the HTTP method to the server will share the response code to the client. तो basically इस response के साथ हमें एक कोड भी आता है। ठीक है, Now what are the various kinds of code? Guys, बस ये 5 टाइप के कोड्स होते हैं। ठीक है, अगर आपका कोड 1 से स्टार्ट होता है, guys this XX means anything from 0 to 9, any digit basically। ठीक है, जहाँ पे भी X है any digit, बट आप ये वाले देखना 1, अगर 1 है it means the server is giving some information to the client। अगर 2 वाला कोड है, सर्वर बोल रहा है आपका रिक्वेस्ट अच्छा था तो वी विल गिव यू द डेटा, सो दैट होल थिंग इज अ सक्सेस। ठीक है, अगर हमने एक रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को एंड सर्वर बोल रहा है कि जो आपको चाहिए यहाँ पे नहीं मिलेगा, कहीं और पे मिलेगा, सो लेट मी रीडायरेक्ट यू टू सम अदर सर्वर, देन वी विल गेट दिस 3 वाला कोड, रीडायरेक्शन। ठीक है, तो अगर ये 4 वाला कोड मिला ना, दैट मीन्स क्लाइंट साइड पे कुछ गड़बड़ हो गया, देयर वाज समथिंग दैट वेंट रॉन्ग एट द क्लाइंट साइड, सो वी विल गेट दिस काइंड ऑफ कोड 4। आपने देखा वो काफ़ी 404 होता है, 401, 402 काफ़ी होते हैं, राइट? एंड अगर ये मिल गया 5 वाला कोड, दैट मीन्स समथिंग वेंट रॉन्ग एट द सर्वर साइड, मे बी वो डेटा है ही नहीं या मे बी वो पेज है ही नहीं, एग्जाम्पल, राइट? सर्वर साइड एरर। ठीक है, तो गाइस these are the various codes that the server sends to the client, because I hope all of this is making sense। ठीक है guys, finally we have HTML tags, right? Yes, of course we are going to build web pages, तो HTML यूज करने वाले हैं। ये देखना, ये जो दिख रहा है ना आपको आपके सामने, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी HTML पेज। ये स्ट्रक्चर हमेशा आपको दिखेगा। टू स्टार्ट द कोड यू विल राइट दिस HTML टैग, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका फर्स्ट पीस ऑफ HTML टैग होता है, तो सिंपली स्टेटिंग दैट यू आर राइटिंग HTML कोड। ठीक है, इस उसके अंदर you have 2 tags at the same level, that is head and body। ठीक है, ये 2 कोड्स हैं। अब हेड क्या बोलता है ना, हेड टॉक्स अबाउट मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज, मतलब हेड का जो टैग होता है उसमें वी विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज, बेसिकली उसका विड्थ कितना होना चाहिए, अगर हम CSS कोड यूज कर रहे हैं तो वो CSS कोड कहाँ से निकालना होता है, एग्जाम्पल, राइट? तो ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज वी विल गिव इन द हेड टैग। ठीक है, अब ये बॉडी टैग क्या होता है, हियर वी विल राइट द कंटेंट ऑफ द पेज, राइट? मतलब जो कंटेंट जो हमें दिखता है ना पेज में, व्हाट वी सी ऑन द पेज, दैट यू विल गिव इनसाइड योर बॉडी टैग, राइट? दिस इज द पेज कंटेंट्स या स्ट्रक्चर।
राइट। बस यहाँ भी हमने लिखा है हेड टैग गिव्स द प्रॉपर्टीज, बॉडी टैग गिव्स द कंटेंट ऑफ द पेज। ठीक है गाइस, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर भी हम थोड़े और टैग्स यूज करेंगे, लाइक फॉर्म टैग्स, हेडर टैग्स, डिव, स्पैन एटसेट्रा। वो हम आगे देखेंगे एज एंड व्हेन वी सी देम। ठीक है गाइस, आई होप दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज क्लियर। HTML टैग होता है, उसके अंदर वी हैव द हेड टैग that talks about properties of the page, body tag talks about the contents of the page. Okay, yes, I hope that made sense. Because with that being said, we are done with the prerequisites. ठीक है, we spoke about endpoints which are nothing but different addresses, basically address of different web pages, right? And हमारे application में भी we will create endpoints. Okay, अभी देखना पाथ पैरामीटर्स एंड क्वेरी पैरामीटर्स। हमने क्या देखा था, अगर आपको एक एंड पॉइंट से पर्टिकुलर डेटा चाहिए यू विल यूज पाथ पैरामीटर। अगर एक एंड पॉइंट में जितना भी डेटा होगा अगर उसको फिल्टर करना है विल यूज क्वेरी पैरामीटर्स, राइट। देन HTTP मेथड्स, बेसिकली एप्लीकेशन में के थ्रू हमें कौन सा एक्शन लेना है वो बोलने के लिए सर्वर को we make use of methods. ठीक है, based on the given method, the given request, what is the status of it? Error था, success था, क्या हो रहा है? तो the server will make use of these response codes. Okay, and finally HTML tags. So guys, with that being said, now we will move to our final section, that is the demo. इस सेक्शन में we will do the coding part. हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, देखना। we will install Flask, उसके बाद हम एक ऐप को क्रिएट करेंगे और उस ऐप के अंदर we'll have various pages, right? तो हम पेजेस बनाएंगे, वो कैसे? using endpoints, right? then उस ऐप को रन करने के लिए we need a server, right? तो we will start the server एंड उसके बाद गाइस ये देखना, अब ये जो कोड दिख रहा है आपको, इफ नेम इक्वल टू मेन, ये कोड हम यूज करने वाले हैं। बट आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, राइट, और लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस कि व्हाई डू वी यूज दिस, व्हाट डज इट डू। गाइस कोई दिक्कत नहीं, वी विल इन डेप्थ वील अंडरस्टैंड इसका मीनिंग क्या है, क्यों यूज करते हैं। ओके, वो देखेंगे। And then we'll also implement path parameters on our own, right? तो ये सारी चीज़ें हम इस सेक्शन में भी देखने वाले हैं, ठीक है। Just give me a moment. चलो guys, okay. So if that is clear, let's close this down. ये examples हमने देख लिए, ओके राइट। ये देखना गाइस, आई हैव मेड दिस फोल्डर फ्लास्क कोर्स, ठीक है। प्लीज डोंट वरी, कोर्स के एंड में आपको सारा कोड भी मिल जाएगा गिटहब में, दीज नोट्स एज वेल एज द कोड, ठीक है राइट। अभी हम पार्ट 1 मतलब आज का क्लास जो है विल मेक अ फोल्डर एंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा काम, राइट। तो लेट्स ग्रैब दिस एड्रेस एंड वी विल ओपन आवर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ठीक है। All right, because it's always a good idea to use environments, right? Virtual environments. आपका जो भी आपका नया प्रोजेक्ट है, अगर कुछ आप काम कर रहे हो स्पेसिफिकली, it's always a good idea to make use of environments, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पे जा रहे हैं हम, पार्ट 1, ठीक है। CD एड्रेस देके हम आ गए। Now we will activate our environment. As I have already made this environment, conda activate Flask env, ठीक है। चलो guys, our environment is activated, okay right. Now how do you install Flask guys? Just as you would install any other library, pip install Flask. Let me make that clear for you. pip install Flask, ठीक है। एंटर कर रहे हैं, okay guys, you can see
रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड क्योंकि आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट, बट यस इतना लिखने से फ्लास्क आपके एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, आज ये एक देखना जिंजा 2, राइट, याद आ रहा है व्हाट इज दैट? दैट इज अ वेब टेम्पलेट इंजन, राइट, इट हेल्प्स अस टू मेक डायनामिक पेजेस। आप देखना फ्लास्क के साथ ऑटोमेटिकली जिंजा 2 इज गेटिंग इंस्टॉल्ड विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जिंजा। ठीक है, राइट, हमने इंस्टॉल कर लिया गाइस। नाउ वी विल ओपन आवर वीएस कोड। ठीक है, कोड डॉट वी विल ओपन आवर वीएस कोड का इंस्टेंस। ओके, ऑल इट इज ब्यूटीफुल, राइट, हियर वी आर। इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, नाउ गाइस वी विल क्विकली ओपन अप आवर इन टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल को ओपन किया, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं, विल बी मोर कन्वीनियंट, एंड लेट्स क्लियर द स्क्रीन एंड लेट्स शॉर्टन इट। यूज करेंगे टर्मिनल को, जस्ट नॉट येट। ठीक है, गाइस विल मेक अ न्यू फाइल। यहाँ पे आप यू कैन कॉल योर फाइल एनीथिंग, बट वी विल कॉल इट app.py। ये कन्वेंशन होता है गाइस, whenever you make an application, right, it's called app.py, कन्वेंशन है। बाय द वे यू कैन कॉल एनीथिंग, हम ऐप यूज कर रहे हैं। नाउ वी विल अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फ्लास्क वी विल इंपोर्ट फ्लास्क। ठीक है, फ्रॉम दिस फ्लास्क लाइब्रेरी वी विल इंपोर्ट दिस क्लास फ्लास्क। ठीक है, राइट, इंपोर्ट किया हमने। इस नाउ वी विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन, राइट। क्या करेंगे, उस ऐप को एक नाम देते हैं, लेट्स कॉल इट ऐप। सो दिस इज द नेम ऑफ आवर एप्लीकेशन, राइट, इक्वल टू फ्लास्क। ठीक है, कॉल किया, ओके गाइस, बट इनसाइड दिस वी हैव टू पास वन वेरिएबल। वो क्या है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अभी टेक्निकल टर्म में अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज कॉल्ड डंडर, शॉर्ट के लिए। ठीक, इट्स जस्ट अ टेक्निकल टर्म, इट इज हाउ इट इज। तो डंडर नेम डंडर, ये क्या है गाइस, विल टॉक अबाउट दिस फॉर नाउ। बस ये देख लेना कि नेम इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट पाइथन असाइंस टू ईच मॉड्यूल। अभी जो app.py है ना, इट्स अ मॉड्यूल, हम इसको बोलते हैं फाइल, .p फाइल या पाइथन फाइल, बट अगेन टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम मॉड्यूल बोलते हैं, ऐप मॉड्यूल। ओके गाइस, पाइथन हर एक मॉड्यूल को ये वेरिएबल लाइक यू नो असाइन करता है नेम करके, तो विल सी व्हाट दैट इज। बट फ्लास्क ऐप को बनाने के लिए वी हैव टू पास दिस। ठीक है, ओके, वो हमने कर दिया। is now we will create our home endpoint, our first endpoint, home page। ठीक है, guys we will create a decorator at जो हमारा नाम है ना ऐप का, उस ऐप का नाम डालेंगे ऐप डॉट रूट। ऐप, हमारे ऐप का नाम डॉट रूट, ओपन द कोटेशन एंड फॉरवर्ड स्लैश। ये फॉरवर्ड स्लैश मतलब एज यू विल सी दिस मीन्स आवर होम पेज। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है गाइस, वी हैव टू राइट अ फंक्शन डेफ, सिंस आवर होम पेज तो वी विल राइट होम। ठीक है, एंड हम क्या रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग है, वी विल से वेलकम टू द होम पेज। ऑलराइट, इस बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वी आर क्रिएटिंग वन एंड पॉइंट हियर। ऐप डॉट राउट लिखने से हम क्या बोल रहे हैं, क्रिएटिंग एन एंड पॉइंट। ओके, अगर कोई हमारे एंड पॉइंट पे आएगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, दैट्स व्हाट वी मीन। वेन एवर वी रीच एन एंड पॉइंट दिस फंक्शन विल गेट कॉल्ड। ठीक है, एंड व्हेन दिस फंक्शन डज गेट कॉल्ड क्या होगा, ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सिंपल गाइस, लेट्स जस्ट रैप दिस अप अंडर HTML टैग h1।
h1 मतलब हेडर टैग, ठीक है। सेव किया इसको, ओके। So we have successfully created our first endpoint. Now we run the app. बट ऐप रन करने के लिए guys यहाँ पे ना आप काफ़ी सारे रिसोर्सेज देखोगे अगर, तो देर आर वेरियस वेज टू स्टार्ट योर फ्लास्क एप्लीकेशन, ठीक है। बट मेरे हिसाब से जो हम अब देखने वाले हैं, दिस फॉर मी सीम्ड वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो हम वो करेंगे, ठीक है। वॉट वी विल राइट इज इफ डंडर नेम डंडर इक्वल टू डंडर मेन डंडर, वी आर सेइंग हमारा एप्लीकेशन को रन करना, एंड लेट्स कीप इट डीबग इक्वल टू ट्रू। बेसिकली अगर कुछ एरर्स आ रहे हैं या कुछ हो रहा है तो ये हमें लॉग्स देगा, मतलब क्या हो रहा है, सर्वर से कौन सा रिस्पॉन्स कोड आया या कुछ एरर है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। गाइस ये एग्जैक्टली हम क्यों लिखते हैं, विल टॉक अबाउट इट। गाइस इतना लिखने से वी हैव स्टार्टेड आवर ऐप। अब हम क्या करेंगे, सेव किया। अब ये देखना गाइस, व्हाट इज दिस नाउ, वी हैव आवर ऐप मॉड्यूल, राइट। तो हम क्या करेंगे, वी विल रन दिस मॉड्यूल नाउ। तो इसको ऊपर लेके आते हैं, पाइथन app.py। अगर हमें पाइथन मॉड्यूल को रन करना है, वी विल राइट पाइथन एंड द नेम ऑफ द मॉड्यूल, इन आवर केस पाइथन app.py, एंटर। एज ये देखना आप, सर्विंग फ्लास्क ऐप, ठीक है, मतलब ये सर्वर क्रिएट कर रहा है, एंड हियर वी गो, आवर एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन दिस एड्रेस, ठीक है, एक लोकल एड्रेस है। एंड ये देखना हमारा डीबगर भी एक्टिव है, आवर डीबगर इज एक्टिव। तो ये ओपन करने के लिए वी विल क्लिक कंट्रोल एंड क्लिक ऑन दिस लिंक, ओपन हो जाएगा। एंड गाइस ये देखना, दिस इज आवर होम पेज, वेलकम टू होम पेज, ओके गाइस। सो वी हैव सक्सेसफुली created our first endpoint, our home endpoint, ठीक है। So let's quickly go here guys, हमने क्या किया, pip install flask करके we installed flask, हमने एक एप्लीकेशन भी बना दिया, ठीक है। एंड वी ऑल्सो मेड एन एंड पॉइंट, सर्वर भी हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। नाउ विल मेक वन मोर एंड पॉइंट, एक और बनाते हैं, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल डू, लेट्स अगेन app.root, ठीक है। नाउ स्लैश, now what is slash home page, now we'll take the user to our about page, ठीक है। क्या लिखेंगे guys, slash about, that's it, this is our new endpoint, about page, ठीक है। now def, if anybody comes to this endpoint, what will happen, this function will get executed, about, and when that happens what are we going to return, इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, वेलकम टू अबाउट पेज, ठीक है। ऐसे इतना लिख रहे हैं, सेव, दैट्स इट गाइस। अब ये देखना, एज एंड व्हेन यू कीप मेकिंग चेंजेस एंड कीप सेविंग, राइट, आप ये देखना आपका सर्वर भी अपने आप रीस्टार्ट होते जाएगा, मतलब यू वोंट हैव टू मैनुअली डू इट, वो अपने आप होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं, रिफ्रेश होम पेज स्लैश अबाउट, अब ये देखना वेलकम टू दी अबाउट पेज, ओके गाइस। बस इतना सिंपल सा कोड लिख के वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड 2 वेब पेजेस, 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है, होम पेज, अबाउट पेज। गाइस आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, अब मान लो यू गो टू आवर, सी अब व्हाट इज आवर होम पेज, this is it, right, but what if I do this, if I just slash home, error आ रहा है, क्यों error आ रहा है, because there is no such endpoint in our application, right। तो इसके अंकज ये भी देखना आप, ये सर्वर में देखना क्या मिल रहा है आपको, get home 404, what is that, the server is giving us this response code 404,
मतलब क्लाइंट साइड एरर, ठीक है, 404 मतलब वी रिक्वेस्टेड फॉर अ पेज विच इज नॉट देयर ओनली, सो इट्स अ क्लाइंट साइड एरर, राइट? ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, डू वी हैव टू राइट दिस एंटायर थिंग अगेन, डू वी हैव टू से दिस एंड से स्लैश होम, ऐसे करना है? बिल्कुल भी नहीं करना है, वी विल रिमूव दिस, राइट? दिस डायरेक्टली for the same function we can have multiple roots, slash home, that's it. We can write these two decorators one after the other, no problem. Save कर रहे हैं, the server is getting restarted, application open कर रहे हैं, let's go to our original address, काम कर रहा है, let's go to our about page, काम कर रहा है, now let's replace about with home, guys welcome to home page, ठीक है guys, I hope यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। we import Flask like this, ऐसे एप्लीकेशन इनिशिएट करते हैं, this is how we create endpoints and this is how we start the application, ठीक है, good stuff is now let's talk about this. Firstly we'll understand what is that dunder name and then we'll talk about what this is means, okay? अब ये अंडरस्टैंड करने के लिए ना there are two concepts that we need to learn, so we'll just understand that by coding. As what are we doing here, एक मॉड्यूल बना रहे हैं mod1, ठीक है, एंड एक और बना के रख लेते हैं mod2.py, ओके। अभी mod1 में हम क्या कर रहे हैं, लेट्स क्रिएट अ न्यू टर्मिनल फॉर दीज थिंग्स। इस टर्मिनल में हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, राइट? वी वोंट डिस्टर्ब दिस, लेट्स जस्ट क्रिएट अ न्यू टर्मिनल, ओके, नीचे कर लेते हैं, राइट? इज नाउ इन मॉड्यूल 1 guys, now we'll print one statement, okay? We are running mod1, right? mod1 है तो if we execute this module mod1 ही run होगा, okay? And let's try to print this dunder name dunder, save। हम क्या बोल रहे हैं, when we execute mod1 what will happen, this statement should get printed, okay? क्या बोल रहा है, running mod1 and this name का variable, रन करके देखते हैं what happens। इसको बड़ा किया, clear this and we will write python mod1.py, okay guys? ये देखना आउटपुट में क्या आया, running mod1 as expected hyphen, okay? as ये देखना आप क्या आया, main। so basically python क्या बोल रहा है, when we ran mod1 के अंदर ये नेम का वैल्यू क्या है, मेन है, ओके? लेट्स ट्राई इट अगेन, इसको कॉपी कर रहे हैं, mod2 में आते हैं, लेट्स जस्ट डू द सेम थिंग, रनिंग mod2, ओके, सेव, और ये हमने कर दिया। नाउ वी विल से पाइथन mod2.py, एंटर। ये देखना रनिंग mod2, ओके, रनिंग mod2, नेम की जगह क्या आ रहा है, फिर से मेन आ रहा है। अब व्हेन वी रन mod2 इनसाइड mod2 नेम का वैल्यू क्या है, मेन है। गाइस ये दो मॉड्यूल्स हमने क्यों बनाए, तो आपको क्या एक पैटर्न दिख रहा है आपको? फॉर दैट मैटर अगर हमने mod 100 भी बना दिया, इफ वी रन द सेम कोड वी विल गेट द सेम आउटपुट। सो व्हाट इज द पैटर्न दैट वी आर सीइंग हियर? गाइस बेसिकली राइट, आप मान लो दिस इज mod1, mod1 के स्कोप में this value is always main, main,
ठीक है। एंड इवन द सेम इन मॉड 2, इसके भी स्कोप में जो ये नेम है ना, इसका वैल्यू होगा मेन। मतलब जो भी पाइथन मॉड्यूल है, पाइथन उसको एक वेरिएबल, ये नेम वेरिएबल असाइन करेगा एंड इट विल कॉल इट एज मेन। ठीक है, दैट्स व्हाट इट मीन्स। एवरी मॉड्यूल इन पाइथन विल गेट दिस वेरिएबल नेम जिसका वैल्यू होगा मेन if it is executed directly. ठीक है guys, first concept, I hope we are clear what is this name. Just a simple python variable and अगर हमने उसको execute किया उसका वैल्यू होता है main. Okay, now guys, second concept क्या है ना, when we write these import statements, I'm not sure अगर आपको पता होगा, whenever we write these import statements, right, Python will always execute that module. Whatever we import, Python उसको actually execute करता है। ठीक है, if you're not clear on what I mean, let's just see this. mod 1 में आए, ये देखना guys, import mod 2, mod 1 के अंदर हम mod 2 को import कर रहे हैं। ठीक है, for now let's just remove this. okay, बस इतना कोड लिख रहे हैं, import mod 2. all right, now what we'll do, we'll run mod 1 and see what happens. इस आउटपुट में देखना what just happened here. When we ran mod 1, right, Python saw this statement, import mod 2. When it saw mod 2, right, it went ahead and executed mod 2. मतलब mod 2 के अंदर जो भी कोड है ना, it got executed. अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, running mod 2, so that got printed first, running mod 2. उसके बाद this got printed, that is running mod 1 main. Guys, I hope this is clear. When we write import statements, Python actually executes those modules that we import. ठीक है, okay, now we'll go back to our old code. हमने क्या लिखा था, name, right? अब रन करके देखते हैं what we get. This will be interesting. क्लियर किया स्क्रीन को, python mod1.py. अब देखना, we ran mod 1, Python saw import mod 2, it executed mod 2. okay, mod 2 में क्या है, ये स्टेटमेंट है running mod 2 जो हमें दिखा। अब नेम है ना, अब नेम की जगह क्या देख रहे हैं हम, mod 2, बट हमने तो देखा था वो मेन था ना। when we ran mod 2, this value was main. now ये देखना, it became mod 2. what just happened guys, तो basically when we run a module, उसके स्कोप में सिर्फ mod 1 का जो वेरिएबल है ना नेम, that will be called main. एनी अदर मॉड्यूल का जो नेम होगा वो उसी मॉड्यूल का ही होगा। आई होप यू गेटिंग इट, राइट? व्हाट आई मीन इज गाइस, दिस इज द mod 1 का स्कोप। ठीक है, ये जो है ये mod 1 का स्कोप है। ठीक है, इसके अंदर जो नेम का वेरिएबल होगा दैट विल बी मेन, मतलब mod 1 का नेम विल बी मेन, mod 2 का नेम विल बी mod 2 itself. यहाँ पे mod 2 का जो नेम वेरिएबल है ना, that will be mod 2 itself. तो basically whichever module we are running with respect to that, उस मॉड्यूल का नेम मेन होगा, any other मॉड्यूल का it will be the name itself. right guys, so this is the concept behind name equal to main. अब सोच के देखना,
if the entire import करने से if the entire code is getting executed, guys मान लो if I am saying import app, ठीक है, import app, एंड अगर हम ये नहीं लिखते हैं, मान लो if we don't write this, comment out किया इसको and we just say this, ठीक है, एग्जाम्पल मान लो guys from here हम क्या बोल रहे हैं, I want to import app, but if I import app what will happen, ये एग्जीक्यूट होगा एंड ये एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, बट इज दैट अ गुड थिंग? व्हाट इफ मुझे वो ऐप स्टार्ट करना ही नहीं है, मुझे इस ऐप से मे बी ऐप के अंदर एक क्लास है जो मुझे इंपोर्ट करना था, राइट, सो मे बी आई वांट टू राइट ऐप डॉट सम क्लास, मुझे इस मॉड्यूल में यूज़ करना है, बट सिर्फ ये इंपोर्ट करने से वी विल ऑल्सो स्टार्ट अप दिस एप्लीकेशन विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट? सो इसीलिए हम क्या करते हैं, वी विल यूज दिस ब्लॉक ऑफ कोड एंड हाउ डज दिस हेल्प, मैं आपको दिखाता हूँ, निकालते हैं इसको, इतना हमने देखा, राइट? अब इफ आई जस्ट पुट दिस नेम इक्वल टू मेन, राइट, जो हम डायरेक्टली लिख रहे थे अभी हम उसको इस इफ स्टेटमेंट में डाल रहे हैं. Now let's try to execute mod1 and let's see what happens. Let's quickly bring up our terminal. Yes, python mod1.py. guys ये देखना आउटपुट में क्या आया, we just have running mod1, we just got this. Even though python imported this, so obviously it will execute, but execute करने पे this statement did not get executed. Why could that be? Maybe because this was false. अब ये false हुआ क्यों? Because mod 1 के रिस्पेक्ट में नेम का वैल्यू क्या है, mod 2 के अंदर it will be mod 2 not main. main क्या होगा, mod 1 के अंदर जो नेम है ना, that is main. mod 2 के अंदर जो नेम है that will be mod 2, so obviously name is not mod 2, right? मतलब ये false, it's not main, it will be false. That is why this code will not get executed. ठीक है guys, this is why we write this if वाला statement. हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हमें ये एप्लीकेशन रन करना है only if we are running app.py module, not any other module, because we know python modules can be imported. तो अगर import करने से if we don't want this app to start up, then वो safety के लिए we use this. ठीक है guys, I hope that made sense what this statement means, right? जल्दी से रिवाइज करते हैं. किसी भी हर एक मॉड्यूल के अंदर पाइथन ये वेरिएबल देता है नेम, जो होता है मेन, उसी मॉड्यूल के अंदर नेम का वैल्यू होता है मेन. ठीक है, नाउ व्हेन वी इंपोर्ट मॉड्यूल्स, पाइथन आल्सो एग्जीक्यूट्स दोज मॉड्यूल्स. ओके, राइट, एंड वी सॉ द प्रूफ आल्सो. ठीक है, बट गाइस एक मॉड्यूल के स्कोप में जो नेम होता है ना, दैट विल बी मेन. किसी और मॉड्यूल का जो नेम होगा वो उसी मॉड्यूल का नाम होगा विद रिस्पेक्ट टू द रनिंग मॉड्यूल, राइट? तो विद रिस्पेक्ट टू mod 1 का नेम मेन होगा, mod 2 का नेम mod 2 होगा, द नेम ऑफ दैट मॉड्यूल. सो दिस इज वाई इफ वी आर इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स एंड इफ वी डोंट वांट द कोड ऑफ दोज मॉड्यूल्स टू बी एग्जीक्यूटेड, we will simply put all of that code under this if condition. This way we will ensure that this condition is true only and only if we execute that particular module. If not, ये वाला statement हमेशा false देगा. ठीक है guys, so this is why we make use of that if name equal to main वाला thing. ठीक है
guys, I hope that was clear. I hope it made sense, right? अगर अभी ये देख के सुन के क्लियर नहीं हुआ गाइस, आप खुद से प्रैक्टिस करना, एग्जीक्यूट द कोड, आई एम श्योर यू विल गेट द हैंग ऑफ इट. ठीक है, राइट. Is now one final thing, path parameters, right? How can we include that? Simple example दे रहे हैं. अब now let's create a new endpoint. अब मान लो एक यूजर है, यूजर उसका एक नाम देगा पैरामीटर, बेस्ड ऑन दैट आई वांट टू वेलकम मैसेज, राइट? तो हम क्या करेंगे, उसको ऐप डॉट रूट एज ऑलवेज स्लैश वेलकम, वेलकम पेज है, ओके. अब एक पैरामीटर भी दे रहे हैं हम, राइट, स्लैश पैरामीटर. तो हाउ कैन आई इंक्लूड दैट पैरामीटर हियर? हाउ कैन आई लेट फ्लास्क नो दैट यहाँ पे एक पाथ पैरामीटर आने वाला है अब, राइट? तो हम क्या करेंगे, एंगल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, उसके अंदर उस पैरामीटर का नाम देंगे, लेट्स कॉल इट नेम, राइट? बस इतना करने से वी हैव इन्फॉर्म्ड फ्लास्क दैट आफ्टर वेलकम वी आर एक्सपेक्टिंग ए पाथ पैरामीटर फ्रॉम द यूजर. वी आर एक्सपेक्टिंग अ पैरामीटर, ठीक है? तो व्हेन वी रीच दिस एंड पॉइंट वी विल run this function, of course, welcome. Now we have a parameter, right? So we should accept that parameter. ठीक है? अब हम क्या रिटर्न कर रहे हैं? रिटर्न हाई नेम, यू आर वेलकम टू दिस पेज. ठीक है, सिंपल से दे रहे हैं. नाउ लेट्स रैप ऑल ऑफ दिस अराउंड द h1 टैग ताकि वो अच्छा बोल्ड सा दिखे. क्लोज कर रहे हैं इसको, सेव. ठीक है, लेट्स ओपन अप एंड वी नीड टू गो बैक. हाँ, इज आवर सर्वर रनिंग? लेट्स जस्ट कंफर्म द सेम. इसको हटा के यहाँ पे आ रहे हैं. यस, आवर सर्वर इज रनिंग. रिफ्रेश, ओके. इज वेलकम दे रहे हैं. विल दिस वर्क अलोन? इट विल नॉट वर्क. वाई? एक पैरामीटर पास करना होता है. सो लेट्स से स्टीव. देखने गाइस, हाय स्टीव, यू आर वेलकम टू दिस पेज. गाइस, दिस स्टीव इज आवर पाथ पैरामीटर नाउ. ठीक है, राइट. गाइस, एक और चीज है, ये जो हम दे रहे हैं ना स्टीव, इसका टाइप क्या है? लेट्स ट्राई वन एक्सपेरिमेंट. अभी मैं ना एक पाइथन का एक स्ट्रिंग फंक्शन चलाऊंगा टाइटल करके. ये क्या करेगा, जितने भी वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट अल्फाबेट इसको कैप्स में कर देगा, टाइटल, राइट? और दिस विल वर्क ओनली ऑन स्ट्रिंग्स. सो लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट. यहाँ पे आ रहे हैं, लेट्स गिव अनदर नेम, ब्रूस. ये देख रहा गाइस, इट गॉट कैपिटलाइज्ड. मतलब these parameters by default are strings. ठीक है. What if I want to pass numeric parameters? वो कैसे हैंडल करेंगे, राइट? आई एम श्योर आपको शायद ये लग रहा होगा कि ठीक है, इनपुट पैरामीटर है तो वी कैन रैप अराउंड दैट इंट कंस्ट्रक्टर, फ्लोट कंस्ट्रक्टर, राइट? वो आप कर सकते हो. इस फ्लास्क, राइट, इट ऑफर्स अनदर कन्वीनियंस फॉर अस. बस देख लेते हैं. ऐप डॉट रूट स्लैश लिख रहे हैं, लेट्स से एडिशन, एडिशन. ठीक है, एड व्हाट? नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग वन पैरामीटर, राइट? नाउ वी सीन दैट. ऐसे लिखते हैं, राइट? डेफ लेट्स से एडिशन, वी शुड टेक दिस नंबर एंड लेट्स ऐड द इनपुट नंबर बाय 10. हम क्या बोल रहे हैं? Input is num, output is num plus 10. ठीक है. Now quickly let's wrap this also around our h1 tag. Okay, now will this work now? Num दे रहे हैं, it's a string, right? Can we add a string and integer? We can't, right? So how do we say Flask that we are expecting an integer parameter here? Guys, by writing something like this, int colon, that's it.
ये लिखने से आप फ्लास्क को इन्फॉर्म कर रहे हो कि एडिशन के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग एन इंटीजर पैरामीटर। ठीक है, सेव कर रहे हैं। सो दिस विल वर्क। यस, नाउ लेट्स कॉल आवर एडिशन का एंड पॉइंट। एडिशन, लेट्स से आवर इनपुट इज 5। देखना गाइस, इनपुट इज 5, आउटपुट इज 15। डायरेक्टली इसने ये एडिशन कर दिया बिकॉज वी मेंशन कि हमें एक इंटीजर चाहिए। ओके, राइट। नाउ कैन वी गिव मल्टीपल पाथ पैरामीटर्स? कैन वी गिव मल्टीपल इनपुट्स? हाउ टू हैंडल दैट? गाइस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जल्दी से इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, ऐप डॉट रूट, लेट्स से एडिशन 2, दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट नंबर। ऑल राइट, हाउ कैन वी पास द सेकेंड नंबर? राइट, तो वी विल कम टू दिस एंड पॉइंट, स्लैश एक इंटीजर देंगे, स्लैश अनदर पैरामीटर जो इंट होगा num2। दैट्स इट। बस बेसिकली स्लैश करके जितने भी आपको पैरामीटर्स देने आप देते जाओ। यू कैन डू दैट। ठीक है, दैट्स इट। नाउ व्हाट इज इट? इनपुट इज ओके, नो, हम मैसेज क्या देंगे? कुछ ऐसे देंगे, राइट? num1 प्लस num2 इज num1 प्लस num2। ठीक है, सेव कर रहे हैं। कुछ एरर दिखा रहा है। येस, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी हैव टू एक्सेप्ट दोज पैरामीटर्स, राइट? येस, नाउ वी आर गुड। सेव कर रहे हैं। ऐसे ये देखना, बिकॉज ऑफ दैट एरर, राइट, हमारा सर्वर स्टॉप हो गया यहाँ पे। लेट मी मेक इट बिग फॉर यू। बिकॉज वी हैड दैट एरर, आवर सर्वर गॉट स्टॉप्ड एंड इट गिव अस दिस एरर। तो हमें क्या करना होगा? क्लियर एंड विल स्टार्ट आवर एप्लीकेशन अगेन। फिर से एरर दिखा रहा है। num1 int num2 app dot route, okay, view function, let's just go through it again. App dot route int num1 int num2, okay, yes guys, error अब क्या था ना, we have two different endpoints, right? Two different endpoints, right? But we cannot have the same calling function. We cannot. आप शायद सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ फंक्शन है ना, पाइथन में फंक्शन तो रीयूज होते जाते हैं, हमने एंड पॉइंट अलग दे दिया तो फंक्शन हम सेम यूज करते जा सकते हैं। इज लेट मी टेल यू, फ्लास्क में, राइट, एज यू विल सी इन द कोड, एंड पॉइंट से ज्यादा दिस फंक्शन मैटर्स मोर। ये जो फंक्शन का नाम जो है ना, दिस मैटर्स मोर। ठीक है, एंड वी विल सी इन द कोड इन द अपकमिंग क्लासेस। बट गाइस वन थिंग, इफ यू हैव मल्टीपल एंड पॉइंट्स, फंक्शन का नाम सेम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या करेंगे? एडिशन 2, इसको भी वही कॉल करेंगे। ठीक है, सेव कर रहे हैं। लेट्स सी दिस। ओके, इट्स स्टिल इन द एरर ओनली। इसको क्लियर करके लेट्स रन आवर मॉड्यूल अगेन, पाइथन ऐप डॉट पाई। ओके, नाउ वी आर गुड। तो लेट्स क्विकली ट्राई दिस, इट्स वर्किंग। ठीक है, एडिशन 2, राइट, लेट्स से 5/10। ये देखना गाइस, 5 + 10 इज 15। बेसिकली जितना भी आपको चाहिए, जस्ट कीप ऑन एडिंग योर पैरामीटर्स। दीज आर योर पाथ पैरामीटर्स, राइट? गाइस आपके पास एक और ऑप्शन है। अगर आपको इंटीजर नहीं देना, you can always have this float. You can write float also over here. That means float parameter. ठीक है? So guys, I hope that made sense. That was all from this class. Right? Unexpected indent दिखा रहा है, कोई बात नहीं, indentation problem है तो we can fix it with this. Let's convert everything to tab, and that should solve our issues. Right? So yeah, let's try it again. Python app.py, unexpected indent.
ओके, वी रोट समथिंग ओवर देयर, ठीक है, नाउ दिस शुड क्लैरिफाई इट, ठीक है, लेट्स क्लियर इट वन लास्ट टाइम, ऐप डॉट पाई एंड आवर सर्वर इज अप एंड रनिंग, ठीक है। हमने क्या देखा, फ्लास्क इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, देन वी राइट दिस पीस ऑफ कोड टू स्टार्ट फ्लास्क। अब नाउ ये नेम हमने क्यों दिया, व्हाट इज नेम नाउ, इनसाइड ऐप डॉट पाई नेम इज मेन, तो हम फ्लास्क को बोल रहे हैं कि किस मॉड्यूल में एप्लीकेशन है, इन दिस मॉड्यूल, ठीक है, दैट्स इट। एंड हियर वी आर क्रिएटिंग सम एंड पॉइंट्स यूजिंग ऐप डॉट राउट, हर एक एंड पॉइंट के लिए एक फंक्शन देना होता है, ठीक है, ताकि व्हेन एवर द यूजर कम्स टू एन एंड पॉइंट उसका फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। एंड ऐसे जितने चाहो हम ऐसे एंड पॉइंट्स बनाते जा सकते हैं गाइस, कितना सिंपल है राइट, मेकिंग एंड पॉइंट्स, मेकिंग वेब पेजेस, जस्ट हैव टू कीप राइटिंग दिस एंड आपका करस्पॉन्डिंग कोड अप लिखते जाना है ऐसे, ठीक है, ये दिखा रहे हैं। एंड फाइनली टू अवॉइड एनी इम्पोर्ट इश्यूज, हम क्या बोल रहे हैं, इस ऐप को स्टार्ट करने का कोड तो ये है, हम ये कहीं भी लिख सकते थे, और व्हाट आर वी सेइंग, start the application only if we are running this particular module, तो वो सेव करने के लिए we will use this if वाला कंडीशन, ठीक है guys, that's it। एंड बाकी बस ये सारी चीज़ें प्रूव करने के लिए we had these two extra modules to understand those concepts, ठीक है। तो guys that's it from my end, I hope all of this made sense, I hope आपको फ्लास्क के बारे में कुछ सीखने को मिला, आप कैसे आपका ऐप क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच, राइट, हाउ टू इंक्लूड पाथ पैरामीटर्स, हाउ टू मेक एंड पॉइंट्स, ठीक है, एंड द थियोरी व्हाट इज मेंट बाय WSGI, जिंजा, HTTP के कॉन्सेप्ट्स हमने देखे, ठीक है। बस वही था। एंड गाइस ये कोड आई थिंक आपके डिस्क्रिप्शन में कोर्स के आपको वो रिपोजिटरी मिल जाएगा गिटहब का, ठीक है, तो कोड आप एक्सेस कर लेना। बस थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ फीडबैक फॉर्म आप शेयर कर देना, आई मीन इनपुट कर देना, शेयर योर इनपुट्स, लेट मी नो व्हाट यू फेल्ट, कैसे लगा आपको, राइट, एंड आई विल सी यू अगेन, राइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।